My sound is clear and the music was also perfect. So last week, if we remember, we spoke about overthinking and mental overload, right? So before we move into today's session, I would love to hear from one or two of you that after our last session, did you come across overthinking? कुछ overthinking हुआ क्या? इस last week में anybody has gone through that overthinking? And if yes, so how did you overcome that? क्या किया आपने? Past जो हमने session में सीखा था वो थोड़ा सा apply किया क्या? अप्लाई तो किया लेकिन फिर भी आ जाता है घूम घूम के। हाँ तो वो तो आएगा ऑब्वियसली, हमने ये तो काम ही नहीं किया कि ओवरथिंकिंग ना हो। ओवरथिंक इज अ नेचुरल प्रोसेस, इट विल हैपन, बट वी शुड बी एबल टू हैंडल दैट। तो वो ही मैं पूछना चाहती हूँ कि हमने एक थॉट डिस्कस किया था लास्ट टाइम दैट not every thought needs my attention right now or not every thought needs to be solved right now, right? तो आपको at least how you could able to manage your overthinking. Do you think you could manage it better than you used to do it? हाँ, पहले से तो बेटर है। पहले से बेटर बेटर है। Okay, और इवन मेरे को अगर नींद भी आने की, जैसे उस दिन गेस्ट था तो लेट नाइट हुआ, फिर तो नींद छूट गई, फिर क्या होगा, मैंने वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट किया, फिर थोड़ी देर में नींद आ गया। वेरी गुड। Anybody else? Share करो, because even if the experience is small, doesn't matter. It can help each one of us, because that is where we learn from experiences. अच्छा ये हो सकता था, हमने नहीं किया, अब next time हम भी कर सकते हैं, right? So please come forward and share it if anybody has done it. And if I talk about personally myself, I have done it. I did it कि भैया अभी सोना है, सोने का टाइम है. I'll think about it tomorrow. I'll think about it tomorrow. This is not the time to solve it. So I used it in the previous week. Anybody else used it? Nahin? All right. Thank you so much for sharing your experience, Ekta. And it was good to know कि हम कुछ सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हमें ताकि, और आगे क्यों बढ़ना है? ताकि हम अपनी हेल्थ को भी इम्प्रूव कर पाएं। बिकॉज अगर यही सब चीजों में हम स्टक रहेंगे, इमोशनल और मेंटल बैगेजेस में, इट इम्पैक्ट्स आवर हेल्थ, बिकॉज आवर सिस्टम इज वन, इट्स इंटरकनेक्टेड। जो चीजें, जो इमोशंस जैसे आपके फ्लो होंगे वैसे आपका हेल्थ फ्लो होगा, as simple as that. So it is a very integral part. The mental health and the emotional health is very integral part for your physical health, as simple as that. So that is why we are working here and we are learning कि इससे हम कुछ और better कर सकते हैं, right? So very good. I also hope कि आप सब आपने सबने नोटिस किया होगा कि जब आप अपने थॉट्स को कॉन्शियसली एनालाइज करते हैं, कॉन्शियसली सोचते हैं, तो ग्रेजुअली उनके ऊपर हमारा बेटर कंट्रोल आना शुरू होता है। Yes, have you noticed that? कि अगर आप अभी कॉन्शियस थिंकिंग कर रहे हो, you are able to separate negative and positive, right? So today we are going to discuss another important emotion which we don't notice consciously, and that is our anger and irritation. Okay? कभी हम एकदम चिल्ला पड़ते हैं, openly गुस्सा कर देते हैं, कभी कभी we keep our mouth shut, we don't express ourselves, हम चुप रह जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं, telling ourselves कि it's okay, कोई बात नहीं, I don't want to create conflict, I don't want to create a scene, और हम आगे बढ़ जाते हैं। But the question is, क्या वो anger disappear हो जाता है जो आपको आया था, जिसको आपने इग्नोर कर दिया, या कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर स्टोर हो जाता है? What do you think? आपने उस टाइम तो बोल दिया कि I don't want to create a scene, but वो घूमता तो है दिमाग में कहीं ना कहीं, right? और अगर वो हमारे अंदर स्टोर हो रहा है तो वो किसी ना किसी फॉर्म में, इरिटेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, ओवरथिंकिंग या इमोशनल आउटबर्स्ट में बाहर तो आएगा ही, और बाहर आ सकता है, चांसेस आर वेरी हाई। कभी कभी हम बोलते हैं कि यार एकदम इमोशंस में आउटबर्स्ट हो गया, राइट? सो टुडे सेशन इज exactly about this, releasing our suppressed anger and irritation which we are holding, which we are thinking कि हम भूल गए हैं, पर जैसे ही वो triggering point आता है ना, वो फिर से बाहर उछल के आ जाता है, and then we react. तो आज हम समझेंगे कि एंगर एक्चुअली आता कहाँ से है, और उसके जो नीचे, एंगर के नीचे हमारे लेयर्स हैं, इमोशन के लेयर्स हैं जो छुपे हुए हैं, राइट? और हम उस एंगर को, उस इमोशन को एक हेल्थियर वे में कैसे मैनेज कर सकते हैं और कैसे उसको हम रिलीज कर सकते हैं, दैट इज द सेशन ऑल अबाउट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कि सबसे पहले तो एंगर है क्या, गुस्सा है क्या? एक नेचुरल इमोशन है, और कब आता है बताइए, कब आता है आपको गुस्सा? अपने आप को भी एनालाइज करते जाना है ना हमें।
The purpose of this session is that कि हमें कब गुस्सा आता है. When somebody blames us, Blaming, yes. wrong blame, and unnecessarily irritating us. या जब हमें लगता है कि या तो हमारी कोई सुन नहीं रहा, हमें समझ नहीं रहा, हमें रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, या हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, हम ही एडजस्ट कर रहे हैं, Yes. राइट? Yeah. तो इन सब सिचुएशन में हमको एक गुस्सा हम आता है victim या बन गए। डिसरिस्पेक्ट, हाँ, या डिसरिस्पेक्ट, किसी ने हमें रिस्पेक्ट से बात नहीं करा या रिस्पेक्ट नहीं दिया, Yes. राइट? सो दैट इज वेयर वी गेट एंग्री. और इसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जब स्पाउस के साथ बार बार एक ही चीज पे बात होती रहती है और फिर हम बोलते हैं यार तुम्हें तो समझ ही नहीं आता, तुमसे तो बात ही करना बेकार है. होता है ऐसा? किसी के साथ होता है? कभी किसी ने ऐसा बोला है यार तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, कितनी बार तो समझा दिया right? फिर भी मेरी बात समझ नहीं आती. तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, अंदर आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि यार इस आदमी को या इस लेडी को समझ ही नहीं आ रहा व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल. और सेम वर्क प्लेस पर भी आप ये सीन ले सकते हो दैट यू आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट, बट आपको ना तो क्रेडिट मिल रहा है, ना आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है बाहर से, बट आप हाउ यू शो आउटसाइड, यू शो योर एवरीथिंग इज ऑल राइट, सब ठीक है, बट अंदर क्या हो रहा है, आपने काम किया, आपको ना क्रेडिट मिला ना एप्रिसिएशन मिला, अंदर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन आ रही है. ओके और बहुत बार ये एक हमने स्पाउस का ले लिया, फैमिली का ले लिया, ऑफिस का ले लिया, बट अगर हम इन सब चीज़ों को क्लब करें, बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, हम कंटिन्यूअसली एडजस्ट करी जा रहे हैं और हम बोलते हैं कोई बात नहीं मैं मैनेज कर लूँगा, चाहे वो फैमिली के साथ हो, चाहे वो आपके काम के साथ हो, आपकी जिम्मेवारी के साथ हो, जो भी है हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले जा रहे हैं और हम बोलते भी हैं मैनेज कर लूँगा, पर माइंड में ये आता है कि यार मैं ही एडजस्ट करूं, मैं कितना एडजस्ट करूं, मेरी नीड्स का क्या. कभी ऐसा आया किसी के दिमाग में? आप ऊपर से तो काम कर रहे हो, ओके आई विल डू इट, डोंट वरी, यू आर बीइंग गुड टू अदर्स, राइट, बट अंदर से यार मैं कितना जिम्मेवारी लूं, मैं कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं. ऐसा होता है, मेरे साथ होता है. आई एम द यंगेस्ट वन इन द फैमिली, तो बड़े भाई बहन है तो उनको यार काम कर देती हूँ फिर, पर अंदर से मुझे कभी कभी लगता है यार मैं ही क्यों काम करे जा रही हूँ. तो वो इरिटेशन बिल्डअप होती है और यहीं से वो इरिटेशन चालू हो जाती है. ठीक है, फिर कभी एक छोटा सी भी बात पे अगर वो ट्रिगरिंग पॉइंट आ जाता है एंड देन यू सडनली स्टार्ट रिएक्टिंग, एंड दैट इज वेयर वी रिएक्ट ऑल्सो. आपने टॉवल फेंक दिया बेड पे, ये बहुत कॉमन इशू है हर एक के घर में कि बेड पे ही टॉवल मिलता है, राइट? तो टॉवल फेंक दिया तो कभी तब इरिटेशन आना शुरू हो गया. किसी ने फोन नहीं उठाया या कुछ, हम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं किसी छोटी छोटी बात पर. तो एक्चुअली अगर हम देखें, गुस्सा सिर्फ उस मोमेंट का नहीं है कि तौलिया बेड पर क्यों है या फिर उसने फोन नहीं उठाया, राइट? उसके पीछे हफ्तों का जो हमारा, हफ्तों या महीनों या सालों का आप बोल सकते हो, सप्रेस्ड एंगर जो है वो फिर एकदम निकलता है और हम उसी सिचुएशन में फिर सारी अपनी पास्ट बैगेजेस भी ले आते हैं. तुमने पहले भी ऐसे करा था, तुम अभी भी ऐसे करते हो, तुम हमेशा ही ऐसे करते हो, राइट? और हम सब गुस्सा अलग अलग तरीके से निकालते हैं. ऐसे सबका वे ऑफ एक्सप्रेशन इज डिफरेंट. आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, राइट? कुछ लोग चिल्लाते हैं, कुछ लोग कट ऑफ कर लेते हैं अपने आप को, एकदम शांत हो जाते हैं, चुपचाप. कितने लोग चुपचाप हो जाते हैं. जनरली हस्बैंड वाइफ का मैंने सुना है, और हमारे केस में भी, कि हम एक जना बोल रहा है तो एक जना शांत होकर चुपचाप, उसको कोई फर्क ही नहीं है, चुपचाप जाके राइट, और आप बोलते जा रहे हो, राइट? तो एक आप कोई शांत हो जाता है, कोई चिल्लाता है, कोई सार्कास्टिक रिमार्क पास करता है, राइट? कोई इमोशनली डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है कि भाई दूर ही रहो. और कुछ लोग अपना गुस्सा अपने ऊपर ही निकालते हैं कि मैं क्यों इतना टॉलरेट करता हूँ, राइट? सॉरी, मैं रोने लगती हूँ. आप रोने लगते हो या क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यार मैं nobody's understanding me. एग्जैक्टली. और यस, विक्टिम सा फील करते हैं. एग्जैक्टली. ये विक्टिम मेंटालिटी कहाँ से आ रही है? क्योंकि हम कर के समझा के या ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले के, पर हम मुंह से कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, राइट? और बाद में हमें लगता है यार मैंने पहले क्यों नहीं बोला, मैं ही स्टूपिड क्यों हो जाती हूँ हर बारी, राइट? ये सब बहुत चीजें हैं जो काफी होती रहती है. बट नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, हम बोल नहीं पाते ना, मुझे लगता है हम बोल नहीं पाते तो हमें ये इसलिए भी रोना आता है कि हम भी फील हेल्पलेस कि एक तो हमने जवाब भी नहीं दिया और तो जो भड़ास तो निकली नहीं. एग्जैक्टली. तो वो फिर रोने में आ जाता है. एग्जैक्टली. हेल्पलेस. एब्सोल्युटली. तो अगर आप यहाँ पे देखो ना, तो एंगर के पीछे एग्जैक्टली आपकी फीलिंग क्या है, ये इसी पॉइंट पे मैं आने वाली हूँ कि एंगर के नीचे जो मैंने आपको बताया कि हमारे इमोशंस हैं,
राइट, कि हम क्या चाह रहे हैं, हाँ जी। राइट, हम क्या चाह रहे हैं। वो इमोशंस हमारे एंगर के नीचे हैं, और वो इमोशंस क्या हैं? वो इमोशंस हो सकते हैं हेल्पलेसनेस के, वो इमोशंस हो सकते हैं डिसरिस्पेक्ट के, कि आपने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी है। वो इमोशंस हो सकते हैं आई एम नॉट हर्ड। वो इमोशंस हो सकते हैं कि इट कैन बी मल्टीपल इमोशंस, ठीक है। पर सबसे ज्यादा यही है कि मेरे को कोई समझ नहीं रहा है एंड आई एम नॉट हर्ड। तो दैट इज वेरी वेरी थिंग है। सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, हम सिर्फ अपने अंदर जो इमोशन है उसको होल्ड करके बैठते हैं तो आज हम उन इमोशंस को एक्नॉलेज करेंगे, बिकॉज समटाइम्स हीलिंग स्टार्ट्स व्हेन वी सिंपली एक्नॉलेज दैट यस आई एम हर्ट, I was angry, I wanted to be heard, and I'll tell you one true story. So there was this couple who went for a counseling before their divorce. तो काउंसलर ने पूछा what's the reason? तो बातें चल रही थी, तो वाइफ ने सडनली बोला कि एक दिन मेरा सर दर्द हो रहा था। ओके, दोनों बैठे हुए थे, एक दिन मेरा सर दर्द हो रहा था, और हस्बैंड बीच में जंप करता है, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। तो हस्बैंड बोला कि मैंने कहा कि सर दर्द हो रहा है तो गोली खा लो। तो उसकी बीवी एकदम चेयर को पीछे फेंक कर उठे एंड शी स्टार्टेड शाउटिंग कि गोली खाना है, मुझे भी पता है, मेरा सर दर्द हो रहा है तो गोली खाना है, गोली खाने से ठीक हो जाएगा, मुझे भी पता है, बट आई एम लुकिंग फॉर योर टाइम, आई एम लुकिंग टू बी हर्ड, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा एंगर का अंदर का इमोशन क्या है, आप क्या चाहते हो फाइनली, आई वॉन्ट टू बी हर्ड। आजकल हम सुनते ही नहीं है ना। तो इस केस में क्या प्रॉब्लम है? इस केस में सिर्फ टाइम प्रॉब्लम नहीं है, डीप डाउन शी वांटेड टू फील हर्ड, अंडरस्टूड एंड इम्पोर्टेंट। तो हमें एंगर की जो इमोशन है उसको हमें थोड़ा सा फिल्टर आउट करना है कि फाइनली हमें चाहिए क्या, बिकॉज दैट विल हेल्प यू वेदर यू विल रिएक्ट और वेदर यू विल हैंडल इट इन अ बेटर वे। क्योंकि हर चीज, हर इमोशन जो है आप रिएक्ट भी कर सकते हो हर इमोशन पे, और हर इमोशन को आप मैच्योरली हैंडल भी कर सकते हो। और जब हम उसको हैंडल करते हैं तो प्रोबेबली वी गेट बेटर रिजल्ट्स, और ना ही फिर हमें इतनी फ्रस्ट्रेशन रहती है क्योंकि हमने हैंडल किया उसे, राइट। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू एवरीवन, दैट कई बार हमारा एंगर कह रहा होता है कि मुझे गुस्सा है, लेकिन उसके नीचे बहुत सिंपल सी नीड होती है, प्लीज लिसन टू मी, अंडरस्टैंड मी, एक्नॉलेज व्हाट आई एम फीलिंग, एंड दैट इज व्हाई हीलिंग समटाइम्स स्टार्ट्स विद simply accepting that I was angry, I was hurt, I wanted to be heard. Okay, so now we are not going to judge or suppress any emotion, we will just acknowledge it honestly. So before we begin, what I want you to think about is, close your eyes, think about a situation or a person or any responsibility जो आपको गुस्सा दिला रही है, irritation दिला रही है, hurt दिला रही है, okay? Any responsibility or person or situation that is causing you anger, irritation or hurt. No need to get into the entire story कि हाँ उस time ऐसा हुआ था. Don't get into the details of it. Just that emotion. Focus on that emotion. Okay. So when you think about it, how strongly do you feel on a scale of 0 to 10? How strongly do you feel that anger or hurt? 0 to 10 मतलब 10 is very high intensity. एकदम गुस्सा आ जाता है वो situation, वो person के बारे में सोच के या फिर वो करके, responsibility सोच के कि सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर ही क्यों है, right? So 10 is high intensity and 0 is obviously no impact. Right? So what's the intensity of that anger? Please type it in the chat box. If you have find out कि person है, situation है या responsibility है, क्या सोच के आपको जो है बहुत गुस्सा आता है. It can be a recent one, it can be in the past जो बार बार trigger होके आ जाता है, because anger की भी cycle है. एंगर की भी साइकिल होती है. एक होता है ट्रिगर हो गया, एक फैमिली मेंबर ने आपकी बात ठीक से सुनी नहीं, राइट? आपने क्या इंटरप्रेट किया, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, नोबडी रिस्पेक्ट मी, नोबडी, माय फीलिंग्स डजंट मैटर, ये आपने इंटरप्रेट कर दिया. इंटरप्रेट के बाद आपका फिजिकल बॉडी में क्या रिएक्शन होता है? व्हाट यू स्टार्टेड फीलिंग? आपका जॉ टाइटनेस, हैवीनेस, चेस्ट हैवी लगता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, राइट? क्योंकि गुस्सा आ गया ना कि यार मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है. एंड देन बिहेवियर वाइज क्या चेंज हो जाता है? यू स्टार्ट शाउटिंग और यू स्टार्ट पासिंग सार्कास्टिक रिमार्क्स और इवन यू स्टॉप टॉकिंग. इट कैन बी एनीथिंग. बिहेवियर वाइज हम चेंज कर लेते हैं, पर उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस? हेल्थ तो हो गई, पर आपकी रिलेशनशिप भी तो डिटोरिएट हो गई ना. कॉन्फ्लिक्ट आपका बढ़ गया, क्योंकि दूसरा सामने वाला जिसको आपने बोला वो भी डिफेंसिव हो गया कि नहीं, मेरा मतलब ऐसा नहीं था, मेरा मतलब ऐसा नहीं था, राइट? और जो आपकी ओरिजिनल नीड थी वो भी मेट नहीं हुई. मे बी आप सिर्फ यही चाहते थे कि वो आपकी बात सुने. फैमिली पर्सन था तो वो
सुन नहीं रहा था आपकी बात, आप तो सिर्फ यही चाहते थे कि आपकी बात सुने, आपकी एक्चुअल नीड तो यही थी, पर गुस्सा आपने किसी और बात का उतार दिया, राइट? आपकी जो नीड थी वो तो रिजॉल्व ही नहीं हुई ना, वो तो अनरिजॉल्व रही। तो वो जो अनरिजॉल्व नीड है वो तो कंटिन्यू रहेगी। तो इसी तरह आपका क्या बन गया, एक एंगर साइकिल ही बन गया। यू क्रिएट मोर हर्ट मोर एंगर, मोर हर्ट मोर एंगर, कॉजिंग द साइकिल टू रिपीट। क्योंकि जो एक्चुअली आपकी जो नीड थी, इमोशन था, वो एंगर नहीं था, वो था टू बी हर्ड, कि मुझे सुनो, टाइम दो, व्हाट आई एम टॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो बताइए, आई मीन have you chosen the person or situation? हो गया चूज सबका? प्लीज रेज योर हैंड। आज सबने वीडियो ऑफ कर रखे हैं, वीडियो ऑन करो यार, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो एवरीवन, इट विल बी गुड। यस यस, सो हैव यू फाइनलाइज्ड? सिचुएशन सब फाइनलाइज हो गई है? किस बात पे गुस्सा आ रहा है, किससे हम गुस्सा है? परफेक्ट। और इंटेंसिटी भी सेट हो गई है, 10 है, 9 है, 8 है। उस सिचुएशन को सामने विजुअलाइज करो, आंखें बंद करके दोबारा से उस सिचुएशन में जंप करो, और उस टाइम आपने कैसा हो गया था आपका, वो आपको फील करना है, क्योंकि उसी को हमें रिलीज करना है, राइट? एंड वेयर यू आर फीलिंग इट इन योर बॉडी, व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट दैट सिचुएशन, दैट पर्सन और दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेयर यू आर फीलिंग इट इन योर बॉडी, कहाँ पे फील हो रहा है? पेट में, हार्ट में, सर में, जॉ में, कहाँ पर फील हो रहा है? मैम एक्सक्यूज मी, अगर हम लेट गो कर चुके हैं, हम उसमें से निकल ही आए थे, तो अब मैं दोबारा सोचती हूँ तो मुझे वैसा फील हो ही नहीं रहा। तो अच्छी बात है। हाँ, अगर आपका वो इंटेंसिटी नहीं आ रही है, हाँ, बट स्टिल व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टिल रिलीज इट कम्प्लीटली। क्योंकि Yeah. आपने कभी ये नोटिस करा है कि वो ट्रिगर हो गई वो सिचुएशन, कभी कभी मैं सोच लेती हूँ, यस, हो रहा है, वो ट्रिगरिंग आ रही है कभी कभी। नहीं, जैसे कभी उस सिचुएशन पे मैंने सिर्फ 1 चैप्टर क्लोज हो गया और वो मैंने लेट गो कर ही दिया, तो उसके बाद वो जो फिजिकली आप कह रहे हो ना, कहाँ पेन हो रहा है या कहाँ फील हो रहा है या वो वाली फीलिंग तो तब आएगी ना जब मैंने फिर उसको भी पकड़ के रखा होगा। अगर मैंने उसको पकड़ा ही नहीं हुआ तो इसका मतलब मैं फ्री हुई हूँ उससे, तो फिर मैं फ्री हूँ, फिर मैं तो उस सिचुएशन को आप भूल जाओ, मूव ऑन टू नेक्स्ट सिचुएशन जो आपको कुछ और ट्रिगर कर रहा है, जो आपको ट्रिगर करता है। अंडरस्टैंड, दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, कि जो आपको ट्रिगर करता है, मुझे लग नहीं रहा कि कुछ ट्रिगर कर रहा है, ऐसी कोई सिचुएशन आई है। चलो, बहुत अच्छी बात, साथ निकल जाती हूँ तो फिर निकल गई, बस ऐसे हो जाता है। तो मतलब आपको ज्यादा ओवर थिंकिंग के इश्यूज नहीं है? वो प्रेजेंट प्रॉब्लम जब होती है तब होते हैं, पास्ट में अगर मैं उसमें से निकल आई हूँ एक बार, फिर नहीं होते। रिजॉल्व हो गया, आपको ट्रिगर नहीं हो रहा, दैट्स गुड देन। यस यस, बट अगर वो रिजॉल्व नहीं हुआ है, वो आप सोच रहे हो कि रिजॉल्व हो गया, पर वो जब भी थोड़ा सा वैसा सिचुएशन आता है तो वो ट्रिगर हो जाता है, यार ये पहले भी हुआ था, क्योंकि सबकॉन्शियस में तो वो पड़ा हुआ है ना हमारे। हाँ, अगर कोई रिपीटेडली ऐसा कोई बिहेव करे दोबारा, या तो आप दोबारा से ना उस लूप में ना फंसो, एंगर वाले। ओके ओके, ठीक है। All right, so where you are feeling in your body, that is also done. Give me a thumbs up. Perfect. So let's acknowledge what you feel and ready to release what you no longer need right now. Okay, to bring in more calm within yourself. So take a deep breath now. Inhale and exhale. I'll just play the music. Are you able to hear the music? Music आ रहा है? नहीं आ रहा उमा जी, नहीं आ रहा। अभी आएगा, अभी? हाँ। All right. Perfect. So we will start with the karate chop, the side of your hand. Okay, repeat it along with me in your mind and let's do it. Even though I'm carrying anger, frustration and irritation inside me towards, अब आपका अगर सिचुएशन है तो आप सिचुएशन को बोल सकते हो, अगर कोई पर्सन है तो आप उस पर्सन को रेफर कर सकते हो, अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है सो यू ब्रिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इनटू दिस. Okay, so I am telling towards him means a person. Okay, but whatever you are having that emotion towards anybody, take that, even it's a person, situation or responsibility, anything. Okay, towards him I acknowledge what I'm feeling right now and I accept myself. Even though a part of me feels hurt, disappointed, helpless, I allow myself to recognize
these feelings without judging myself. Even though I have been holding this anger for a long time, and I accept that there was a reason I felt this way, but I'm truly and deeply love and accept myself. Now we will do on the eyebrow. All this anger that I'm carrying towards him, side of your eyes, I feel hurt by what he did, and he failed to understand me. Under the eye, I feel unheard, ignored, disrespected, which I completely not able to accept. Top of the head, I acknowledge this anger, this hurt, which I am carrying towards him. Under the nose, a part of me is still asking, why did you treat me that way? Under chin, I wanted understanding, support, respect, appreciation. Collarbone, I may have stayed silent and adjusted and kept everything inside me, but the hurt and frustration is still there. Under the arm, I'm still holding resentment, frustration, because a part of me feels that what happened was unfair. Now take a deep breath, hold it and exhale. Alright, so now how is the intensity when you started with that emotion, strong emotion, and where you have reached now? Do you see any change in the intensity? If you bring the same again, the picture again, बताइए, has it reduced, not reduced, same? नहीं, कम हुआ. कम हुआ है by how many हाँ. points? पहले कितना point था? पहले 9 था, अभी 6. Very good, very good. Anybody else? What is the पहले intensity? 3 था उमा जी, पहले Okay. 3 था, अब 0 का. मैं कहने मेक वन स्मॉल दिस थिंग अपना वो बोलना चाह रही थी कि if one does self analysis and self introspection, जब सेल्फ को हम जानेंगे तो सामने वाले की क्या इंटेंशन है वो समझ आ जाएगा. We know the other person well. So इस तरह की जब स्थिति आएगी तो हम दूसरे को गलत समझेंगे ही नहीं. I mean, Exactly. this is just my thought. This is, Exactly. It's knowing ourselves better, and so that we can manage our emotions better. yeah, We can handle our emotions better. that's right. फिर भी ना like my husband is very cooperative, हम दोनों मिलकर सारा काम करते हैं, लेकिन at times he's always watching the iPad and phone. तो irritating लगता है कि भाई हम यहाँ खड़े होकर सिर्फ बातें ही करते रह जाते हैं. Otherwise when I tell him आराम से, then he also realizes, फिर वो ठीक हो जाते हैं. Exactly. Yeah. अब ये है ना कि हम दूसरों को चेंज नहीं कर सकते. Right. What we can do is we can keep our inner environment healthy and happy. We can take responsibility of our emotions. हम किसी और के लिए कुछ नहीं कर सकते, right? But हम सिर्फ अपना environment, अपने आप को खुश रख सकते हैं. That is in our hand and that is our responsibility also. क्योंकि जब घड़ा भरा हुआ होता है तभी हम दूसरे को दे पाते हैं, राइट? अपना ही घड़ा खाली है तो फिर वो भी बजेगा, और सामने वाले का भी घड़ा खाली है तो वो भी बजेगा. Right. So yeah, so that's the thing. All right, so now we have acknowledged. Now we will release these emotions so that our intensity reduces further, okay? And we feel more better, और थोड़ा trigger कम हो. That is the whole idea here. Obviously, we cannot come out of the completely. हम यहाँ पे संत नहीं बन रहे हैं, हम यहाँ पे अपना anger छोड़ नहीं सकते हैं. But how to manage it? That is what
what we are trying to do here. Okay, all right. So I'll just share the music here. Perfect. So now let's release our anger. So we'll start from the eyebrows here, where our eyebrow is starting. So this anger, irritation which I have been carrying towards him, or towards this situation, or towards this responsibility, release. Side of your eyes, the expectation which I am having towards them, that they should have behaved differently, release. Under eye, any thoughts that keep replaying the hurt, the words, the disappointment, release. Crown, any belief which I am holding towards this anger, I choose to release and create more space for calmness, clarity, and emotional freedom within myself. Below nose, any action of mine which is causing this frustration and emotional heaviness from within, release. Any emotional drama, frustration, reactions, or stories I have created around this person and this anger, I now choose to gently release. Collarbone, the frustration of carrying this emotional burden for so long, and the tension which my body is experiencing because of this, release. Underarm, the argument I'm still having with him inside my mind, the emotional charge I have attached to him and this experience, release. Again, take a deep breath and release. Yes, so where we have reached in the intensity part. So we have tried to release all the actions, the thoughts, the believing which we were having inside of us. We have tried to release it. So Ekta, where you have reached now? From 6? 3. From 6 to 3. Very nice. Fantastic. Fantastic. Anyone else would like to share? What's the intensity now? 9? Good. So feeling good? Everybody feeling good? Chalo, thumbs up de do. Yes, feeling good. Perfect. Great. Great. Now we'll do the last round. We will set our calming intentions. Okay. Again, we'll start with the eyebrows. I'm allowing my mind and body to become a little calmer now. Side of the eye. I do not need to keep fighting this person in my mind again and again. Under eye. I can let this moment be over, even if everything was not resolved perfectly. On the head, I choose calmness, clarity, and emotional freedom without carrying this person's behavior inside me. Under the nose, I'm choosing peace over repeatedly carrying the same anger and frustration. I'm tired of carrying the same anger and frustration in me. I can protect my boundaries without carrying any frustration inside me.
collarbone. I'm bringing my energy back to myself. I choose to focus on what I need, what I can control, and what supports my emotional well-being. Underarm. I may not be able to change this person or the past, but I can choose how I want to feel within myself from this moment onwards. Again, come back to the side of your hand and we'll close it with this. Even though I have carried this anger and hurt and disappointment for a long time, I now choose to release it and return to peace. I now choose to release and return to peace. Take a deep breath, take your arms up and release. Exhale out. Saying the word release is important because you are releasing all the dead emotions which are doing nothing in your body. Yeah, there is no work of those emotions in our body. So we have to say release. Yeah, very good. So how is the intensity now? Please share. Yes, Ekta. What's the intensity? From 9 to 6 to 3 to... Now it's 0. Awesome. Fantastic. You are feeling relaxed now? Same situation को सामने लाए और कुछ नहीं हो रहा है? Right. Awesome. Very good. Very good. Anybody else? Anybody else? Please come forward. Share your experience. It will be good. Nobody is judging you. Otherwise, सबसे पहले तो मैं ही ना आती कि सारे मुझे जज करेंगे. Right? Nobody is judging here. You may still have some anger, some hurt. Okay, because healing is different for everybody, right? And that is completely okay. So we do not have to force ourselves कि हाँ उसको completely भूल जाना है, forgive कर देना है. We do not have to get angry. It doesn't work like that. It happens gradually. So it was about becoming aware of what we have been carrying, right? So for the coming week, again, what I would recommend, what I would suggest is whenever you notice, yourself getting angry or irritated, what you have to do, you don't have to suppress it. You do not have to immediately react it. But what you will do, you will take a pause and ask yourself what actually you are feeling. पहले हमें अपने बारे में तो पता हो हमें क्या फील हो रहा है, right? Is it the hurt? Is it the disappointment? It is feeling unheard or disrespected or unappreciated? Actual में क्या emotion हमें क्या चाहिए है? We should be clarified with that. And then choose, do I want to react from my anger or I should respond from this awareness which I have created after knowing my emotions behind the anger? And you will see, you will respond better. Agree everybody? Yeah. जैसे overthinking में हमने अपने वहाँ पे full stop लगाना है कि not every thought needs to be solved right now. Same way anger पर भी कि finally emotions हैं क्या? What I actually want. So I'll close it with this, that what you have to do is you are not practicing how to never become angry, but we are practicing how to feel anger without allowing anger to decide what you do next, whether you react or whether you handle the situation better, right? All right. So with this, we have come to the end of the session.